जिन लोगों की स्टोरी बची थी, अगर आज वो लोग तैयार हैं तो एक एक करके अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दे, नहीं तो मैं आज उसका काउंटर क्लोज कर रही हूँ। ओके स्वर्णिम। Yes, ma'am. Ma'am, the story I am going to present is about Tipu Sultan. Ma'am, Tipu Sultan was born on 20 November 1750 in Devahali. He was the Sultan of Mysore. In the 18th century, he was popularly known as the Tiger of Mysore. He is remembered for many technology and administrative innovation. Among them was introduced of the new coin denomination and new coin type. He also introduced lunar solar calendar. Tipu Sultan is revered as a pioneer in the use of rocket artillery. He expanded the use of rocket, deploying as many as 5,000 rocketeers at the time. Rocket innovation during this time used iron tubes that could hold the propellant and enabled high thrust and longer range of missiles. He deployed the rocket against advances of British forces and their allies during the Anglo-Mysore War. The rocket used during the Battle of in 1780 and siege of Sarigapatnam in 1799 were said to be the more advanced than British have previously seen. During his rule, he introduced a land revenue system which gave a boost to Mysore silk industry and helped in establishing Mysore as a major economic power. Tipu Sultan had great love of horticulture and gardening. His father and gave him being credited for establishing the 40-acre Lal Bagh botanical garden in Bangalore. He fought several wars against Marathas and British and came out victorious in the Fourth Anglo-Mysore War between 1798 and 99, but he was defeated when the forces of British East India Company, the Marathas and Nizam Hyderabad came together and he was killed on 4th May 1799 while defending his fort of Sri Ganga Patna, present day Madhya in Karnataka. I'm done. ओके ठीक है, फाइन। आदित्य वर्मा बताइए। Sairam ma'am, I am going to present the story about Indira Gandhi, the only daughter of Prime Minister Jawaharlal Nehru. Indira Gandhi was destined for politics, first appointed Prime Minister in 1966. She garnered widespread public support for agricultural improvement that led to the India's self-confident uh, India's self-sufficiency in food grain production as well as for her success in Pakistan war, which resulted in the creation of Bangladesh in 1971. After serving 3 terms, Gandhi was voted out of office for her increasingly authoritarian policies, including a 21-month state of emergency in which India's constitutional rights were restricted. In 1980, however, she was re-elected to a fourth term. Ma'am, that's all. इलेक्शन के बाद खत्म। व्हाट अबाउट हर असैसिनेशन? व्हाट अबाउट हर ब्लू स्टार ऑपरेशन? व्हाट आर अबाउट द फॉरेन पॉलिसीज? हितेंद्र। मैम मैम ये कहानी एक साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है। एक बार की बात है, एक बच्चा था, उसको वो हमेशा उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था,
उसके तो एक दिन उसको एक स्कूल से लेटर आता है कि लेकिन वो तब बहुत छोटा था। उस दिन उसकी वो अपने मम्मी से पूछता है कि वो लेटर क्या, उसमें क्या लिखा है। तो फिर वो बोलता है, उसकी माँ बोलती है कि अ, उस लेटर में यह लिखा है कि तुम अभी इस स्कूल में, तुम इस स्कूल के मतलब तुम स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो फिर इसके लिए हम तुम्हें अभी नहीं पढ़ा सकते, हम तुम्हें हायर स्कूल में पढ़ेंगे। अ, और वो घर में ही पढ़ता था। तब उसके बाद जब वो बड़ा हो गया तो और बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, तो फिर जब उसने वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपके बेटे का मानसिक रूप से बीमार है, तो फिर इसलिए हम उसे नहीं पढ़। गुनिका, This story about Tenali Ramakrishnan. Tenali Ramakrishnan is also known as Tenali Rama. He was an Indian poet, scholar, thinker, and a special advisor in the court of Sri Krishna Dev Rai, who ruled from CE. He was a Telugu poet who hailed from what is now the Andhra Pradesh region, generally known for the folk tale which focused on his wit. He was one of the Athreides or the eight poets at the court of Krishna Dev Rai Emperor. that's all. Yes, ma'am. ये जितने लोगों ने आज मुझे स्टोरी सुनाई है, तुम मुझे खुद बताओ, आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट यू डिड टुडे? तुम अपने खुद के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो तो मुझे बता दो कि इससे अच्छा तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे बुरा तुम लोग कर सकते हो। बस करना है तो कुछ भी तुम लोगों ने आज कर दिया है। बाकी के लोग आयुष, भूपेंद्र, हेमंत, मुकुंद मीना, मुकुंद शर्मा, श्याम, सुमित और प्रणव और राजवर्धन, अगर कुछ सुना रहे हो तो सुनाओ, नहीं तो मैं 0 देके खत्म कर रही हूँ तुम्हें। और इसका पूरा इम्पैक्ट तुम्हारे ओवरऑल असेसमेंट पे भी पड़ेगा। अब तुम ये मान के चलो कि तुम्हें 20 में से 15 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। एनीथिंग एल्स ऑन आवर एजेंडा टुडे? कुछ पुराने बचा है, किसी चीज के रिवीजन की जरूरत है तो बोल दो, बिकॉज आई वॉज होपिंग कि आज तो पूरा पीरियड तुम लोगों की स्टोरीज में ही चला जाएगा। सो आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट टीचिंग एनीथिंग एल्स। कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, कुछ आप लोग बोलना चाहते हो, फ्लोर इज ऑल योर्स। एक मिनट रुक जाओ अदिति, लेट्स सी where your name is, where your topic is. Yours is electoral, Aditi Verma or Aditi Jain? Aditi Jain. Yes, yours is electoral politics, the process of election. और ये अगर तुम लोग प्रेजेंट नहीं करोगे तो और 0, ये 0 0 0 बढ़ते बढ़ते टोटल तुम्हें 20 में से 0 दे दूंगी। और अगर 20 में से 0 आ गए या आप प्रैक्टिकल में पास नहीं होते हैं तो आप थ्योरी में भी पास नहीं होते हैं, यू आर नॉट कंसिडर्ड पास। बेटा तुम अभी कौन सा मेंटली प्रेजेंट हो?
एक 0 लेके तो बैठ गए हो, दूसरा भी ले ही लो। पीपल एज अ रिसोर्स, फैक्टर्स टू इन्फ्लुएंस क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। और तुमने बोला भी था कि मुझे चेंज करना है। ये मत बताओ मुझे कि तुम एब्सेंट थे, मुझे सब याद रहता है। तुम लोग टीचर को सबसे बड़ा बेवकूफ समझते हो। खैर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो सच में कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात याद रखना, तुम्हारी पीटीएम तो मैंने ही लीड करनी है, और एक एक का नाम लेके सबके सामने बोलूंगी जो तुम लोग हरकतें कर रहे हो। फिर तुम घर पे एक्सप्लेन करते रहना, नॉट माय प्रॉब्लम। और इस बार जिसके पेरेंट्स नहीं आएंगे उन्हें फोन करके बताया जाएगा, क्योंकि जब आप लोगों को स्कूल में डाल रखा है तो उन्हें भी पूरे पता होना चाहिए कि आप लोग यहाँ क्या करते हैं। एनीथिंग बायोसेंसर्स ओझा, व्हाट डू यू वांट टू से भूपेंद्र? अपना माइक खोल के बात किया करो, ये तो तुम्हारी आधी बातें मुझे समझ में ही नहीं आती हैं। क्या स्टोरी? स्टोरी सुनाएंगे आप? ठीक है सुनाइए। Ma'am, the story of Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar was born at the Nirmala Nursing Home in the Dadra, Bombay on 24th April 1973 to a Maharashtra family. His father, Ramesh Tendulkar, was a well-known Marathi novelist and a poet, and his mother, Rajni, worked in the insurance industry. The Sachin Tendulkar is a former of Indian international cricketer who was also the captain of the Indian national team. He is widely regarded as the one of the greatest batsmen in the history of cricket. He is the highest run scorer of all time in international cricket, considered as the world's most prolific batsman of all time. He is only player to have scored 100 international centuries, the first batsman to consider as the world. He सुन रही हूँ मैं, क्या हुआ? बस 10,000 रन पे सचिन तेंदुलकर की कहानी खत्म हो गई? आई मस्ट से आप लोगों के हालात ना 6th-7th के बच्चों से भी ज्यादा खराब है इस समय। एटलीस्ट वो जो स्टोरी सुनाते हैं उन्हें खुद को तो सेंस बनता है कि वो क्या सुना रहे हैं और क्यों सुना रहे हैं। सचिन तेंदुलकर स्टोरी शुरू करी क्या बस यही बताना था कि ही स्कोर 10,000 रन्स? कुछ और भी तो बताओ। हाउ ही स्ट्रगल्ड, वेयर ही वेंट, हाउ ही रीच्ड टू द पिनेकल ऑफ हिज करियर। This has been the most disappointing class in terms of storytelling. The most disappointing. 3 या 4 लोगों को छोड़ के मैंने किसी को ढंग के मार्क्स नहीं दिए क्योंकि आप लोगों ने ढंग का काम नहीं किया है। भूपेंद्र, श्याम, मुकुंद मीना और प्रज्ञा, आप लोगों को प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स नहीं मिले हैं, सो यू विल हैव टू मेक अप फॉर दैट विद एन एक्स्ट्रा असाइनमेंट। लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है तुम लोग अपने असाइंड चीजें नहीं कर रहे हो। क्या एक्स्ट्रा असाइनमेंट दूं मैं तुम्हें? और ये मत सोचना कि मैं फेल करने से डरती हूँ। साइंस मैथ्स में अगर निकल जाओगे और सोशल साइंस में रह जाओगे, मैं तो खुशी खुशी रोकूंगी क्लास 9th में, अगले साल फिर पढ़ाऊंगी।
और सभी के लिए है ये। Anything you wish to ask? Anyone? किस चीज के मार्क्स चाहिए तुम्हें नकुल? नकुल थोड़ा सा स्पेसिफाई करो। स्टोरी टेलिंग, ठीक है, तुम्हारे मार्क्स मैं बता देती हूँ। आई गेव यू 8। निलय, आई गेव यू 10। शुभम, आई गेव यू 7। पूजित, आई गेव यू 10। Ratika, let me see, 9. Aditi Jain, 9. Rama and Janvi. Rama, I gave you 10. Janvi, I gave you 8. Nishika, I gave you 7. Maximum 10. मैं कुछ लोगों के नाम ले रही हूँ और अगली क्लास में मुझे इन सब के सारे मैप वर्क तैयार चाहिए। और जिनका नहीं आएगा, अगेन डिडक्शन। आयुष, हेमंत, भूपेंद्र, हितेंद्र, मुकुंद मीना, मुकुंद शर्मा, प्रज्ञा, प्रणव, राजवर्धन, श्याम, और अगर सुमित वापस आ जाता है तो सुमित एंड स्वर्णिम। लेट मी जस्ट मार्क योर नेम्स हियर, किस किस का मैंने नाम लिया है। And Gunika also. I'll just repeat my names: Aditi Verma, Ayush, Bhupendra, Gunika, Hemant, मुकुंद मीना, मुकुंद शर्मा, हितेंद्र भी रह गया एक, हितेंद्र अगेन, एंड प्रज्ञा एंड प्रणव, राजवर्धन, श्याम एंड स्वर्णिम। और अगर सुमित thinks that he is good enough to grace us with his presence, तो ये लोगों के जितने भी मैप वर्क हैं क्लास 9th के, इन लोगों का मैप वर्क तैयार होना चाहिए। एंड आप किसी से फोन मांग के लाइए, आप किसी से बोरो करें, I do not know, but in the next class I want live presentation of the maps that you have made. No, it actually came with an update from Google. I did not do that. इन लोगों का पूरा मैप वर्क चाहिए। अब जब पूरे मैप वर्क की मैं बात कर रही हूँ तो ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स इसमें आते हैं। और जिस हिसाब से तुम लोग जा रहे हो, यू आर जस्ट गिविंग मी स्लोली चांसेस टू डिडक्ट योर मार्क्स, एंड आई हैव लाइव प्रूफ व्हाई आई एम डिडक्टिंग योर मार्क्स।
और अगर दोनों नहीं करोगे तो फिर जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन होगा उसमें भी तुम लोग -2 से ही शुरुआत करोगे। कितना ही अच्छा बना लो, 8 के ऊपर मैं मार्क्स नहीं दूंगी अगर 10 का होता है तो। बाकी अभी तो जैसा चल रहा है कि पीरियोडिक के हिसाब से अगर हमें उसे करना पड़ा तो इट विल बी टफ। हो सकता है और ज्यादा मार्क्स का हो जाए तुम लोगों का प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ढंग से ही बनाना, क्योंकि अब कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होगा। पीरियोडिक ऐसे ही चलेंगे जो मैं अभी एक्टिविटीज करा रही हूँ। मैम कितनी तारीख तक होगा मैम प्रेजेंटेशन? बेटा अभी हम लोगों को स्कूल से कोई डेट नहीं दी है, लेकिन ऐसा कहा गया था कि अक्टूबर एंड और नवंबर स्टार्टिंग। जब बोलेंगे उस दिन से हम लेना शुरू कर देंगे। आपको इसीलिए इन एडवांस बता दिया है कि आप लास्ट में पैनिक ना करें। Anything else? कौन से असाइनमेंट की बात कर रहे हैं आप शुभम? एक बार मुझसे क्लियरली पूछिए। मैम जिसके आपने अभी टॉपिक्स वगैरह बांटे थे। बेटा जो टॉपिक बांटे हैं ना, ये असाइनमेंट नहीं है, ये आपका प्रेजेंटेशन है और इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। Yes, ma'am. I was hoping that we should keep the last chapter for some time, क्योंकि हमारे पास इतने सारे मल्टीपल असेसमेंट करने के लिए पड़े हैं, लेकिन आप लोग मल्टीपल असेसमेंट में पार्ट ही नहीं ले रहे हैं। तो जो लोग पार्ट ले रहे हैं उनको मैं मार्क्स देती जा रही हूँ। What else did we decide? हम लोगों का एक प्रेजेंटेशन हो गया है, स्टोरी टेलिंग हो गया है, और इसके अलावा क्या डिसाइड किया था हमने? क्या डिसाइड किया था मल्टीपल असेसमेंट के लिए? मैं भूल जाती हूँ। अदिति मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप लोगों को मैप ट्रेस करके बनाना है, पूरी आउटलाइन। एक कार्बन का पेपर लेंगे, एक ब्लैंक पेज लेंगे, अपनी बुक लेंगे, उस मैप को वैसा के वैसा आप ट्रेस करेंगे और फिर उसके बाद उसके अंदर मार्किंग करेंगे। क्या मार्क करना है? सीबीएसई एकेडमिक की वेबसाइट पर जाएंगे, जो 9th क्लास के लेटेस्ट मैप आर्टिकल्स हैं उसको आप मार्क करेंगे। चाहे तो मैं यहाँ पर लिंक दे सकती हूँ, सेव करके रख लो कौन कौन से मैप आपको करने हैं। इसमें पेज नंबर 10 से आप लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स देखना शुरू कर सकते हैं। टेन टू 12 में दिया हुआ है क्लास 9th का। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेटरी प्रेजेंटेशन, ठीक है ठीक है ठीक है, वो आप लोग जो है टेस्ट के लिए करेंगे। क्विज ऑफ फैक्चुअल टॉपिक्स एंड टॉपिक वाइज रिवीजन क्वेश्चंस इन ग्रुप। क्विज तैयार कर लो। नेक्स्ट क्लास कब है तुम्हारी?
आई थिंक कल ही है। कोई भी ऐसा है जिसका क्विज तैयार है? मैम ये ग्रुप वाला था मैम। नहीं नहीं, इसका ये जो क्विज ऑफ टॉपिक वाइज रिवीजन क्वेश्चंस ग्रुप के लिए दिए थे मैंने, मुझे याद है। क्योंकि उसमें तुम लोग कोलैबोरेट कर सकते हो। क्विज सिंगल ही बनाना था, मुझे याद आ रहा है। किसी का भी तैयार है क्या? जो आप लोगों के प्रेजेंटेशन का टॉपिक है उसी पर क्विज बना लो। इट विल एक्ट एज अ रिवीजन ऑल्सो, क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी तुम लोगों को बांट दिए गए हैं। इट विल सेव सम टाइम। मैम लेकिन फिर प्रेजेंटेशन में मैम एक चीज कम हो जाएगी। प्रेजेंटेशन में भी क्विज डालना चाहते हो? मैम सम क्वेश्चन। अच्छा, ओके। रुको फिर, लेट मी डिसाइड समथिंग। एक कॉलम और इसमें ऐड करते हैं, तुम लोगों को अलग अलग टॉपिक पकड़ाते हैं। रुक जाओ। मैम बोलो। क्विज तो गूगल फॉर्म में होगी। क्या कह रहे हैं आप? मैम आपने बोला था कि क्विज तो गूगल फॉर्म पर होगी। हम्म। वो तो और भी आसान है। रुको, तुम लोगों के टॉपिक डिसाइड कर देते हैं। अभी कर देते हैं, कुछ खास टाइम नहीं लगेगा इसमें। अब देखते हैं किसकी किस्मत में क्या आता है। अगर किसी को रिपीट हो जाए तो मुझे बता देना। यस, अब मैंने टॉपिक्स तो कर दिए हैं तुम लोगों के। और भी बताओ, क्वेश्चन नंबर कितने रखना चाहोगे? हाउ मेनी क्वेश्चंस? मैम 10। मैम 7। 7 कोई नंबर नहीं होता है। मैम 10। मैम 10। 10 seems to be a reasonable number. Okay. कुछ लोगों के टॉपिक्स रिपीट होंगे, पर अगर अब तुम 10 क्वेश्चंस कर रहे हो, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने चाहिए। क्वेश्चंस रिपीट होंगे, दैट विल शो दैट यू जस्ट कॉपीड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है?
ओके फाइन, अब मैं बताती जा रही हूँ, नोट डाउन करते जाना। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, आयुष, हितेंद्र एंड श्याम। फ्रेंच रेवोल्यूशन, मायरा, मोनिका, स्वर्णिम एंड यशिका। हिटलर, मुकुंद शर्मा, निलय, प्रियांशी एंड राजवर्धन। इंडिया, साइज एंड लोकेशन, अदिति वर्मा एंड मुकुंद मीना। Natural vegetation, Hemant, Pranav and Sumit. Sorry, and Aditi Jain also. People as resource, Rama, Ratika and Shubham Sahu. Physical features, Akshara, Akshita, Bhupendra, Gunika and Janvi. Poverty as challenge, Pujit and Pragya. Story of Palampur, Nakul. मैम प्लीज रिपीट माय टॉपिक। बेटा नाम बताओ अपना एक बार। मैम हितेंद्र। हितेंद्र, रुक जा। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन बेटा। मैम बोलो। मैम जैसे मैम स्टोरी ऑफ पालमपुर है मैम, अपने मन से भी थोड़े क्वेश्चन बना के डाल सकते हैं ना बेटा चैप्टर से रिलेटेड मतलब होना थोड़े चाहिए, अपनी वैरायटी के क्वेश्चन बनाओ ना तुम। तुम्हें किसी सोर्स से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। मैम सॉरी, बाय मिस्टेक आई सेंड इट। ओके ओके। नीले, यू वांट योर टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन। बेटा जो प्रेजेंटेशन है उसमें तुम्हारा फिजिकल फीचर्स में नहीं रुको, प्रेजेंटेशन में है आपका नेचुरल वेजिटेशन में कॉजेस ऑफ द वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और क्विज के लिए मैंने आपको टॉपिक दिया है अभी हिटलर। क्विज बनाना फिर शुरू कर दो। क्विज बनाने में वैसे भी कुछ टाइम नहीं लगता है, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट में बता देती हूँ, हाउ टू मेक अ गूगल फॉर्म सो दैट यू डू नॉट हैव टू वेस्ट योर टाइम, और तुम लोगों के पास बहाने नहीं बचेंगे। बेटा जो अभी मैं एक्टिविटीज बता रही हूँ ये सारे एक्टिविटी सिंगल है, अभी कोई भी ग्रुप एक्टिविटी मैंने किसी को असाइन नहीं की है। Ratika, your topic is rise to the power of Hitler to power. I'm just showing you how to create a Google form. देख लीजिए ताकि आपको ज्यादा फिर टाइम ना वेस्ट करना पड़े। So that will be your home window. होम विंडो पे आप डाल सकते हैं गूगल फॉर्म, क्योंकि हो सकता है कहीं के टैब, कुछ लोगों के टैब्स में वो आपको नहीं मिले, नहीं तो यहाँ पर यूजुअली मिल जाता है एप्लीकेशंस में। Now this will be Google form. You have to go to Google Forms, and here you will find the template, that is blank quiz. यहाँ पर आप जो भी आपके टॉपिक होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा टॉपिक है हिटलर, यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर वो गया। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आप इसके अंदर चेंज करेंगे, दैट विल बी नेम।
क्योंकि नाम बहुत जरूरी है। इट विल ऑटोमेटिकली चेंज इनटू अ शॉर्ट आंसर टेक्स्ट, लेकिन इसमें आप लोगों को जो रिक्वायर्ड है उसे इनेबल करना पड़ेगा, वरना नेम के बिना वो पूरा सबमिशन हो जाएगा। नाम के बिना सबमिशन हुआ यूजलेस होता है। क्लास आप लोग ऑलरेडी एक ही क्लास के और अपनी क्लास में ही फ्लोट करेंगे, तो हमें और कुछ इसके अंदर डालने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई क्वेश्चन, व्हेन वाज हिटलर बोर्न? I'll just write some random numbers here. अब इसमें नीचे जाएंगे, आंसर की में यू विल हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड देन यू हैव टू अवॉर्ड इट मार्क्स कि इतने मैंने पॉइंट दे दिए, डन। बस एक क्वेश्चन हो गया। फिर ऐसे ही करके आप अलग अलग क्वेश्चंस को फॉर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, कलेक्ट ईमेल रिसीप्ट्स, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। ये आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे नहीं कर सकते हैं। एंड रिलीज ग्रेड यू कैन डू इट इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, क्योंकि आप लोगों को चेकिंग तो करनी नहीं है एज सच। सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी, फिर यहाँ पर सेंड आ जाएगा, और क्योंकि हम क्लास में ही लेंगे तो हम ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। वी विल टेक दिस शॉर्टन URL, वी विल कॉपी इट हियर and we will paste it here for you to solve. अब जिसके रिस्पॉन्सेज आएंगे वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आप एक कॉलम में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको सबके मार्क्स भी पता चल जाएंगे। दैट वे जो भी इसको बना रहा है दैट पर्सन विल नो कि किसको कितने मार्क्स आए। और आप चाहें तो इसके अंदर मुझे एज ए कोलैबोरेटर भी ऐड कर सकते हैं। सॉरी, ऐड कोलैबोरेटर में आप चाहें तो कर सकते हैं, इट इज ऑप्शनल। दैट वे आई विल ऑल्सो बी एबल टू सी रिस्पॉन्सेस। प्रोसीजर काफी सिंपल है, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। करना शुरू कर दो। और आज कौन सा डे है? आज वेंसडे है। थर्सडे को तुम लोगों की क्लास रहती है बेटा, थर्सडे और सैटरडे। कल कोशिश करें, देखते हैं। मैम सैटरडे बेटा थर्सडे को भी है, सैटरडे को भी है, दोनों दिन है। मैम क्विज सैटरडे। क्विज सैटरडे को, चलो ठीक है, देखते हैं। अगर कल कोई कर पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ खास ऐसा टाइम तो लगेगा, और नहीं तो फिर सैटरडे से तो शुरू कर ही रहे हैं। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड साइरा। सायरा मैम। सायरा मैम। सायरा मैम। यस, कोई कुछ कह रहा था? मैम जो बोलो। मैम जो क्विजेस बनाने हैं मैम, वो MCQ बनाने हैं या फिर मैम मतलब उनका जो लॉन्ग आंसर टाइप भी बना सकते हैं? नहीं 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 बेटा, MCQ ही बनाइए, नहीं तो लॉन्ग आंसर कौन चेक करेगा, ओके मैम। है ना।